براہ راست شو فضل ربی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ مہربان ہے، اور اس کی مہربانی کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ہمیں بارہا سیکھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے، اپنی رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے خدا ترتیب کا خدا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا نے کام کرنے کے طریقے انسانوں کو بتائے ہیں، سکھائے ہیں، اور انہی طریقوں میں سے، انہی علوم میں سے جب ہم الہامی کتب کی بات کرتے ہیں، سمجھنے کی بات کرتے ہیں، تو علم التفسیر، جو تفسیر کا علم ہے، سیکھنے کا علم ہے، تفسیر سے مراد ہے باتوں کو کھولنا، باتوں کے معنی بیان کرنا، باتوں کا کھل جانا۔ تو جب بھی کسی الہامی کتاب کی، پوری دنیا میں انسان مختلف کتب کو مانتے ہیں، کچھ کو الہامی مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے، انسانوں کی آزاد مرضی ہے اور کسی پر زبردستی نہیں ہے۔ تو علم التفسیر کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے جب ہم سوالات و جوابات کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہم نے عرض کیا تھا کہ ان دنوں میں ہم سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ان میں مختلف سوالات ہیں، ان کے جوابات دیتے چلے جائیں گے، لیکن علم التفسیر کے اصولوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں ایک بڑی بات کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے کہ جس کتاب کی بات کی جا رہی ہے، اس موضوع یا اس مسئلے یا اس بات پر اس کی اندرونی شہادتیں، کون کون سی آیات گواہی دیتی ہیں اس بات کی یا اس مسئلے کی جس پر غور کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد بیرونی شہادتیں، ان پر بھی غور کیا جاتا ہے۔ ہم سوالات و جوابات کے سلسلے میں ہمارے مختلف مسلمان بہن بھائیوں نے سوالات اٹھائے تھے، ان کے جوابات دے رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سوالات ہیں وہ وقت زیادہ لے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے دیگر سوالات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ حکمت کی حدوں کو پار کر کے وہ اپنی باتوں کو لاگو کرنا چاہتے ہیں جو ان کی مرضی ہے، لیکن ترتیب اور وہ باتیں جو خدا سکھانا چاہتا ہے اس کی ترتیب ہے، اور اس کی ترتیب میں رہتے ہوئے برکت ہے، سلامتی ہے، محافظت ہے، عقلیں روشن ہوتی ہیں، بے وقوفیاں دور ہوتی ہیں، شیطان شرمندہ ہوتا ہے، اور انسان بھلائی کے کاموں میں خدا کے رنگ میں رنگتے ہیں۔ اس کو بھی سمجھنے کی آج ضرورت ہے۔ جب ہم کتب پر غور کرتے ہیں تو ان میں جو کچھ فرمایا گیا ہے، کیا وہ ہمارے ذہن میں رہتا ہے یا ہم الٹ کرتے ہیں؟ تو سوالات اور جوابات کے سلسلے میں چونکہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں نے یہ سوال اٹھائے ہیں، تو آئیے قرآن کی چند آیات دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے ہماری الہامی کتب اور ہمارا رد عمل جو ہے یہ کیا ہے۔ کیا یہ جھگڑا سکھاتا ہے ہمیں؟ تو آئیے قرآن کی پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ اس میں حکم ہے کہ جھگڑا نہ کرو، یہ فرمان قرآن ہے۔ تو پھر جھگڑنے والے کس کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے یا کسی اور کے؟ اس آیت پر غور کیجئے کیا کہہ رہی ہے۔ اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریقے سے کہ نہایت اچھا ہو، اچھائی ہو ہر بات میں یہ ہے۔ ہاں، جو ان میں سے بے انصافی کریں، یہاں پر ایک شرط دی گئی ہے، اگر کوئی بے انصافی یا زیادتی کرتا ہے ان کے ساتھ اسی طرح سے مجادلہ کرو، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اگلی بات زیادہ اہم ہے، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پہلی بات، جھگڑا نہ کرو، یہ حکم ہے۔ قرآن کو حکم خدا تعالیٰ کہا جاتا ہے، ہمارے مسلم بہن بھائی مانتے ہیں۔
تو اگر کوئی حکم توڑتا ہے تو وہ نافرمان ہے، اور اگر کوئی حکم پر عمل کرتا ہے تو وہ فرمانبردار ہے۔ یہی صورتحال مسیحت میں بھی ہے۔ لیکن کلام، بائبل، قرآن کہیں رہ جاتا ہے جب انسانوں کے اپنے ایجنڈے سامنے ہوں، تو پھر وہ ایجنڈے ان ساری کتب کے جو احکام ہیں ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اسی لیے قباحتوں کا شکار ہیں، تنزلیوں کا شکار ہیں، ہم سازشوں کا شکار ہیں، ہم نفرتوں کا شکار ہیں، ہم موت حسد کا شکار ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں حکم مان رہے ہیں۔ تو چرچوں کے اندر اکثر کہتا ہوں، ڈینومینیشنز کے اندر، مختلف مسلمان فرقوں کے اندر، ہندو فرقوں کے اندر، سکھ فرقوں کے اندر، دیگر مذاہب کے فرقوں کے اندر تصویر تو کچھ اور کہتی ہے۔ تجزیہ ضروری ہے۔ نہ جھگڑو، تو جو جھگڑتا ہے کس کی حکم عدولی کرتا ہے؟ پھر آخر میں بات واضح کر دی گئی، تمہارا معبود اور ہمارا معبود ایک ہی ہے۔ اگر ایک ہی خدا ہے تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی یا مشکل ہیں ان پر غور کرنے کے لیے راہ بھی واضح فرمائی گئی ہے۔ تو واضح حکم یہاں پر سن لیجئے، جھگڑا نہ کرو، اور بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں زور دیا گیا ہے کہ جھگڑا نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، صلح، میل ملاپ، بھلائی۔ اور سورہ النحل اس کی 125ویں آیت اس کے ساتھ ضرور پڑھ لیجئے جو میرے مسلمان بہن بھائی ہیں، اور جو جھگڑا کروانے والے ہیں پھر ان سے بچیے۔ اب اصل علم پھر کس کے پاس ہے؟ رجوع اگر کرنی ہے تو اصل علم کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے یا خدا تعالیٰ کے پاس ہے؟ سورہ ال عمران ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں پر اس آیت پر غور کریں تمام احباب کہ بعض آیات محکم ہیں، مضبوط ہیں، اور وہی اصل کتاب ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے بعض متشابہ ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں۔ اب پھر دوسری آیات بھی ساتھ آ گئیں اور کہا گیا ہے کہ جو ان پر چلتے ہیں یا ان کا کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ آیات دونوں ہیں، وہ فتنہ برپا کرتے ہیں۔ تو وہ آیات جن کی وہ پیروی کرتے ہیں، آیات کی پیروی سے فتنہ برپا ہو، یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ پھر اگلی بات ہے مراد اصلی کا پتہ لگائیں۔ اب پھر کہا گیا ہے مراد اصلی کا پتہ لگائیں، سچ کا پتہ چلائیں، جو بات کے معنی ہیں وہ ڈھونڈے جائیں، نکالے جائیں۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے، مراد اصلی حقائق، سچ بات، معنی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اگر خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا تو پھر کون کھولے گا ان باتوں کو؟ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا تو اس کے دو معنی تو نہیں ہے نا، کہ کچھ لوگ جانتے ہیں یا جن پر یہ کھلی ہے، پھر کس طرح سے کھلی ہے؟ کہاں سے ان کو الہام ہوا؟ کس نے یہ باتیں کھول دی ان پر اور انہوں نے لکھی؟ ذریعہ کیا ہوا تفسیر کا؟ تو یہ ایک اہم بات ہے، سوچنے والی۔ اصل صرف خدا جانتا ہے۔ آگے دیکھ لیجئے، کیا تم نہیں جانتے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے خدا اس کو جانتا ہے؟ خدا تعالیٰ کے سوا اصل کوئی نہیں جانتا۔ تو اصل جب کوئی نہیں جانتا تو اصل اس نے کس کس کتاب میں کھول دی اور بتا دی؟ جس مقام تک آج ہم پہنچے ہوئے ہیں، آئیے مسلم علماء کیا کہہ رہے ہیں، دور حاضر کے دو جید علماء ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں تو پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ انقلاب لائیں دلوں کو بدلنے والا۔ انقلاب کہتی دل کے بدل جانے کو ہے۔
کہ اللہ کی نافرمانی کے راستے چھوڑ دیں، ظلم و ستم کے راستے چھوڑ دیں، زیادتی کے راستے چھوڑ دیں۔ میرا دیس ظلم سے بھرا پڑا ہے، ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو۔ میں حکمرانوں کو یا سیاستدانوں کو یا طاقتور کو کیا برا بھلا کہوں؟ میرے دیس میں جس کا داؤ لگتا ہے وہ ظلم کی آخری حد تک چلا جاتا ہے۔ مظلوم بھی جب طاقت میں آتا ہے تو ظالم 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 ترین بنتا چلا جاتا ہے۔ تو بھائیو، اہل بیت کی قربانیوں کے یاد میں ایک سبق سیکھیں کہ ہم ظالم نہ بنیں، ظالم کے ساتھی نہ بنیں، ظلم کے راستے پر نہ چلیں، مظلوم بن جاؤ، حسینی قافلے کے شریک بن جاؤ۔ ظالم بنو گے تو پھر شمر کے ساتھ ہی جانا پڑے گا، ادھر ہی سفر ہوگا، اس طرف سفر نہیں ہو سکتا۔ مظلوم بن جاؤ، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ظلم و ستم، قتل و غارت، چوری ڈاکے، اغوا، رشوت، اس پیسے کو لے کر کہاں جانا ہے؟ ان گوٹھیوں بلڈنگوں کو لے کر کہاں جانا ہے؟ کیا آج جو اوروں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں ان کے پیچھے موت نہیں کھڑی ہوئی؟ جو اپنے بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، کیا قبر کے کیڑے ان کی لاشوں کو نہیں کھائیں گے؟ کیا موت ان کو بھلا دے گی؟ میں تو ہر دفعہ یہ کہتا ہوں، جھوٹ نہ بولو، ظلم نہ کرو، بددیانتی نہ کرو، فرائض ادا کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو، محبت سے رہو، پیار سے رہو، نہ مذہب کے نام پہ قتل و غارت کے بازار گرم کرو۔ اللہ کی قسم اس کا فائدہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میری بات پہ یقین نہیں تو اسپین کا ایک چکر لگا لو۔ میں جا کے میں وہاں آنسوں سے نہیں رویا، میں جو کہتے ہیں نا خون جگر اور دل کا رونا، یعنی میرے دل اور جگر سے آنسوں نکلے وہاں۔ اس وجہ سے نہیں کہ یہاں زوال آ گیا، اس وجہ سے کہ جس وجہ سے وہ تباہ ہوئے تھے وہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور کسی کو ہوش کوئی نہیں ہے۔ سب علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے عقائد جو میں ہیں مضبوط رہو، نفرت کی آگ نہ بھڑکاؤ، محبت کا پیغام دو، محبت کا پیغام دو، محبت کا پیغام دو۔ سب کو گلے لگانا سیکھو، اختلاف رائے کو برداشت کرنا سیکھو۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں، تعصب سے پاک ہو کے رہو، مسلم بن کے رہو، اپنے عقائد پر مضبوط رہو جو تمہارے ہیں، کسی کو اس طرح نیچے نظروں سے نہ گراؤ کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، کس طرح آگ بھڑک رہی ہے۔ سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کو واجب القتل کہتے پھر رہے ہیں۔ رحم کرو، اللہ کے واسطے رحم کرو۔ بہت تاریکی کا دور ہے، اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ سیاست کے نام پہ ظلم نہ کرو، مذہب کے نام پہ ظلم نہ کرو، قومیت کے نام پہ، تجارت کے نام پر کسی بھی شکل میں ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ۔ سینے سے لگانا سیکھو، دھکا دینا نہ سیکھو، پیار کرنا سیکھو، نفرت کرنا نہ سیکھو، قریب کرنا سیکھو، دور کرنا نہ سیکھو۔ پہاڑی کا آواز اصل میں اس بنیادی رشتے کو محکم کرتا ہے، محبت کا پیغام ہے، خدا سے محبت، انسانوں سے محبت۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اس بنیادی تصور کو واضح کیا ہے، اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں مسلمانوں کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ پہاڑی کی آواز کو پڑھیں۔ اس وقت خود مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس میں شاید ان کی رہنمائی کے لیے اس سے اچھی چیز کوئی نہیں۔ آپ نے دور حاضرہ کے دو معتبر علماء کی باتیں سنی ہیں، دل کا انقلاب، اور غامدی صاحب نے فرما دیا کہ موجودہ صورتحال میں پہاڑی کا آواز ہم سب کی اہم ضرورت ہے، اس کو پڑھا جائے۔ دل کے انقلاب کی انہوں نے بات کی۔ پہاڑی کا جو آواز جس کا ذکر کیا گیا وہ آپ کو متی کی انجیل کے 5ویں باب میں ملے گا، اور جس دل کے انقلاب کی بات کر رہے ہیں پہلے مولانا محترم طارق جمیل صاحب، اس کے لیے وہ انقلاب کیسے آ سکتا ہے،
दिल का इनकलाब कैसे आ सकता है, कुरान ने उसके बारे में क्या फरमाया है। सूरह अल हदीद और उसकी 27वीं आयत है। दिल का इनकलाब कैसे आ सकता है और पहाड़ी के वाज की तरफ रहनुमाई की गई है, तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ये मेरे पास मौलाना थानवी साहब का तर्जमा है, अशरफ थानवी का। 27वीं आयत पढ़ रहा हूँ। ये सूरह अल हदीद है और यहाँ पर लिखा है, और उनके बाद ईसा मरियम को भेजा और हमने उनको अंजील दी, और जिन लोगों ने उनका अत्तबा किया था हमने उनके दिलों में शफकत और रहम पैदा किया। शफकत और रहम पैदा किया, मेहरबानी पैदा की दिलों में। और पहाड़ी का वास, जब हम उसकी बात करते हैं तो वहां पर एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूं। 9वीं आयत है 5वें बाब की। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। खुदा को बाप कहा गया है। तो आज हम पहाड़ी के वास की ये आयत शायद जब लोग पढ़ेंगे तो वो कहेंगे नहीं, ये तो तस्लीस की तालीम है, तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं, फरीद साहब, उनसे बात करते हैं। उनके सवाल के जवाब के बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे एक भाई ने पूछा था कि तस्लीस पर बात करें, तो हम आज उस पर बात करेंगे। मैं प्रोफेसर असगर अली साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे हैं असगर साहब, आप ठीक ठाक हैं जनाब? जी बिल्कुल, खुदा के खैरियत से, उसके फजलो करम से खैरियत से हैं। जी बहुत शुक्रिया। दो उलमा ने हमें बताया दिल का इनकलाब, तो वो आयत मैंने सूरह अल हदीद उसकी 27वीं आयत पेश कर दी कि दिल का इनकलाब अतबाए ईसा मसीह, यस्सु मसीह, जिसको मसीही खुदावंद मानते हैं और मुसलमान बहन भाई उनको नबी मानते हैं, जो भी उनकी पैरवी में आएगा, कुरान ने कहा उसके दिल में शफकत और मेहरबानी खुदा पैदा कर देता है, डाल देता है। और फिर उन्होंने फरमाया कि जो पहाड़ी का आवाज़ है वो इस वक्त बहुत अहम तालीम है पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, ताकि हालात बदलें अगर बदलना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर है कि वो जो सुलह कराते हैं खुदा के बेटे कहलाएंगे। तो आज मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, पूरा आपके पास तकरीबन 50 मिनट हैं, आप तस्लीस को समझने में क्या रुकावटें हैं, हमारे मुसलमान बहनों भाइयों के एतराज़ क्या हैं और उनका जवाब क्या है, कैसे वो समझें। सो दरख्वास्त है आपसे, कैसे समझे हमारे मुसलमान बहन भाई और मसीही तस्लीस को, क्या एतराज़ हैं बड़े और कैसे आप उनका जवाब देंगे? पहले से शुरू कीजिए। जी, और क्या खूब आपने आयत को पढ़ा है। अब मेरा आवाज़ इको हो रहा है जनाब। आवाज़ की कुछ खराबी है, तो एक कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, आपको बराह रास्त शो फजल रबी में ज़िंदगी टेलीविज़न पर खुश आमदीद कहते हैं। फरमाइए, आप ऑन एयर हैं। जी जी, सलाम जी डॉक्टर साहब। जी जी, आपकी भी सलामती हो। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैंने कॉल की थी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता था कि पैदाइश 6 बाब में है कि जब रोई जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर दिया। हम ये जानना चाहते हैं कि ये खुदा के बेटे कौन हैं और इंसान की बेटियां कौन हैं? इंसान की बेटियां कौन हैं और खुदा के बेटे कौन हैं? जी जी बहुत शुक्रिया। सवाल आपका हमारे पास आ गया है। प्रोफेसर साहब, इससे आगाज करेंगे या तस्लीस पर इसको बाद में करेंगे, बताइए। इसी से जो पैदाइश 6 का 3 से का इन्होंने हवाला दिया है, इसी से हवाला शुरू करेंगे। ठीक है, आपकी आवाज़ अब क्लियर है, सो प्लीज़ गो हेड। तो मैं पहले बता दूं कि जनाब का इस सवाल के लिए बड़ी बड़ी शुक्रिया, जो इन्होंने अपने ख्यालात को जाहिर किया है। और किताब मुक़द्दस में खुदा के बेटे से मुराद जो है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं हमारी मदद करेगी तस्लीस को समझने के लिए भी। ठीक है, तो वहाँ पे जो आयत कोट किया गया है वो ये है कि खुदा के बेटे, इसके लिए 2 राय है। जब हम पैदाइश 4 का 26 पढ़ेंगे तो 4 के 26 में लिखा है कि
उस वक्त लोग खुदा यहोवा को नाम लेकर पुकारना शुरू कर दिए और जी इससे मुराद यह है कि हजरत सेठ के जो औलाद थे वो लोग खुदाबंद यहोवा पर यकीन करते थे और एक राय यह है कि ये उनके औलाद थे और जो इंसान की बेटियां हैं वो कहीं ना कहीं जो इंसान की बेटियां हैं वो कैन की बेटियां थीं। तो एक राय यह है, क्योंकि आप जानते हैं जब यूहन्ना के इंजील पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 1:12 से लेके 13 में कि जितनों ने उस पर यकीन किया उसे उसने खुदा का बेटा होने का हक बख्शा। और लोग कहते हैं क्योंकि पैदाइश 4:26 में लिखा है कि उस वक्त लोग यहोवा खुदा के नाम लेके दुआ करना शुरू किए, यानी वो लोग ईमान रखे और इसलिए उन्हें खुदा का बेटा कहा गया है। अब हम आते हैं वापस अपने तसलीस के मसले पर। और एक इसके ऊपर सेकंड हम दीजिएगा क्योंकि प्रोफेसर साहब, एक सेकंड जी। दीजिएगा। जो दूसरा थॉट है खुदा के बेटे के बारे में, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। आपने एक बात कर दी, दूसरा क्या मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ की हुई है, तो वो मैं चाहूँगा कि आप दूसरा जो जी। तस्वर है उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए। जी बिल्कुल। दूसरी जो राय है हम पढ़ते हैं अय्यूब का किताब उसका 1:5 से लेके आगे कि लिखा है कि खुदा के बेटे वहां पर आए और उनके बीच शैतान भी आया और वहां पे खुदा के बेटे से मुराद है वो फरिश्ते, और खास तौर से जो फरिश्ते खुदा के खिलाफ बगावत किए जिसका जिक्र हमें मिलता है यासया रसूल उसका 14:12 से लेके आगे, यानी इब्लिस शैतान और उसके साथ जो फरिश्ते थे जो गिराए गए, ये जो थे ये शैतान थे, यानी फरिश्ते शैतान बन गए। और इनके बारे में लिखा है कि इन्होंने शायद ये गलती की और इसीलिए जब हम पढ़ते हैं जूड के लेटर में तो लिखा है जूड के लेटर में कि जो फरिश्ते अपने जिस्मानी मुकाम को छोड़कर गुनाह किए, खुदा ने उन्हें जंजीरों से बांध करके तारीकी में रखा है ताकि क़यामत के दिन इनका इंसाफ करे। तो एक राय है कि ये लोग हजरत सेठ के औलाद हैं, बेटे और बेटियां कैन की, और दूसरी राय यह है कि ये गिरे हुए फरिश्ते थे जो शैतान बन गए थे, इन्होंने जिस्मानी गुनाह किया। एंड जनाब मैं आपको बताऊं कि हमने ऐसे 4-5 जिन्नों को निकाला जो कि लड़कियों के साथ जिस्मानी रिश्ता करते थे, तो हम सेकंड राय को भी इनकार नहीं करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा बेटे के मसले के बारे में बता दूं कि जनाब बेटे के लिए बहुत सारे लोगों के दिलों में गलत फहमी है। और फॉर एग्जांपल जब कुरान पढ़ेंगे तो उसके 33:6 में लिखा है कि हुजूर की बीबियां यानी पैगंबर इस्लाम की बीबियां तमाम मुसलमानों की माँ हैं और आप तमाम मुसलमानों के बाप हैं। लेकिन आपको मालूम है कि इसी सूरह तहरीम 33:40 में लिखा है कि पैगंबर इस्लाम किसी के बाप नहीं बल्कि वो आखिरी नबी हैं। और इसके ऊपर आलिमों का बहुत बड़ा गुफ्तगू चला और ख़ासतौर से तफसीर इब्न कसीर इसके ऊपर तफसीर करते हुए कहते हैं कि अगर हम ये कहें कि हुजूर की बीवियां तमाम मुसलमानों की माँ हैं और आप बाप नहीं, तो आप इसको समझेंगे कैसे। फिर आगे लिखा है जब कुरान में पढ़ेंगे उसका 43:4 में एंड कुरान 13:43 में, तो लिखा है कि उम्मुल कुरा कुरान किताबों की माँ है। आप इसको जिस्मानी तरीके से तो नहीं समझेंगे। फिर लिखा है कुरान 6 अनाम का 52 आयत में और 42 के साथ में कि मदीना शहर शहरों की माँ है। आपको मालूम है कि कुरान के अंदर ऐसे कई सारे हैं, जैसे अरब के लोगों को कहा जाता है ये लोग सड़क के बेटे हैं, कुछ लोगों को कहा जाता है ये तौहीद के औलाद हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि कुरान के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा जहन लगाने की ज़रूरत है कि आखिर इसका मतलब क्या है। दूसरी बात मैं थोड़ा सा बेटे के ऊपर वजाहत कर दूं आपको। अल्लाह के बेटे और बेटी के लिए जो सवाल था तो सूरह जुखरुफ 43:16 में पढ़ेंगे तो लोग कहते थे वहाँ के अरब के लोग कि अल्लाह की 3 बेटियां हैं, अल्लात मनत एंड उज्जा। तो मानते थे कि अल्लाह की एक बीबी है जिसका नाम है अलत और उसके 3 बेटियां हैं अल्लात मनत एंड उज्जा। और इसकी तसरीह मिलेगा सही अल बुक तारीख अल तबरी वॉल्यूम 1 उर्दू पेज नंबर 103 से लेके 105 में
कि अरब के लोग सचमुच में मानते थे कि अल्लाह की बेटियां हैं और इस तरीके का लोग ख्यालात रखते थे। तो पैगंबर इस्लाम ने कहा कि नहीं, खुदा इन सब बातों से पाक है और तुम उसके लिए मत कहो कि खुदा की कोई बीबी है। और इसीलिए कुरान 6 का 101 में लिखा है कि अल्लाह की कोई बीबी नहीं तो उसका बेटा कैसे पैदा होगा। फिर सूरे जिन 72 के 3 में लिखा है कि उसकी ना कोई बीबी है और ना कोई बेटा। लेकिन मैं सवाल करूं, सूरे मरियम 19वां सूरा आयत 16 से लेके 33 में लिखा है कि बीबी मरियम को बेटा पैदा हुआ बगैर शौहर का। तो अगर बहस ये है क्योंकि खुदा की बीबी नहीं तो उसका बेटा पैदा नहीं हो सकता है, एंड कुरान में एक ऐसे शख्स हैं बीबी मरियम कि उनको बेटा पैदा होता है और उनका शौहर नहीं। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि देखिए, अगर बीबी मरियम एक औरत हो के ये मैनेज कर सकती हैं कि बगैर शौहर का बेटा हो, तो क्या खुदा बगैर बीबी का मैनेज कर सकता है कि नहीं? बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। नहीं कर सकता, नहीं, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे जनाब। अगर ऐसा है तो आप क्या कह रहे हैं कि क्या खुदा इंसान से कमजोर है? मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा आप अपने जहन को लगाएं जनाब, है ना, अपने जहन को थोड़ा सा सोचने के लिए मौका दें कि अगर एक औरत को बगैर शौहर का बेटा हो सकता है तो खुदा को क्यों नहीं? और फिर खुदा कहता है सूरह 39 के 4 में कि अगर, मतलब पैगंबर इस्लाम कहते हैं कि अगर खुदा का बेटा है तो सबसे पहले उसकी इबादत मैं करूंगा। तो मैं बता दूं, ये सूरत बता दीजिए जरा, सूरत और आयत। प्रोफेसर साहब सूरत और आयत बता दीजिए। 39 का 4 कि अगर खुदा का कोई बेटा है तो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि सबसे पहले उसका इबादत मैं करूंगा। यहाँ पर एक और प्रोफेसर साहब, बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है। एक बात और प्रोफेसर साहब खोलिए कि ये जो लफ्ज अल्लाह है, अब इस्लाम की जलीलुल कद्र हस्ती, इस्लाम के आखिरी पैगंबर, वो इस्लाम लेकर आए और उनके जो जद्दे अमजद और उनके जो आबाओ अजदाद हैं, उनके मज़हब की भी बात की जाती है। तो उनकी पैदाइश से पहले उनके जो वालिद एक और जलीलुल कद्र हस्ती इस्लाम में, उनका नाम अब्दुल्ला था। जी, अब्दुल्ला का मतलब आप भी जानते हैं। तो ये तो तसव्वुर तो पहले था, और अल्लाह की बेटियों का तसव्वुर जो आपने बयान फरमाया है, तो ये तो पहले के माबूदों में फिर आ जाता है, बाद के माबूदों में तो ना हुआ ना। क्या ख्याल है आपका? जी, और नहीं, बिल्कुल सही है। और थोड़ा सा हमें क्लैरिफाई कर देना शायद अपने सवाल करने वाले साहब के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि पहले एक तो बात आपने कहा कि देखिए, अब्दुल्ला जो नाम है इसका मतलब है कि अल्लाह के खादिम, है ना, आपको मालूम है। और इससे पहले जो आप अल्लाह के बारे में तहकीक करेंगे कि आप थे कौन एक्चुअली, मतलब अल्लाह थे कौन। जी, यहाँ तो पर प्रोफेसर साहब बता दूं कि जी, प्रोफेसर साहब एक सेकंड दीजिए, एक कॉलर हैं, उनके साथ यही बात आपकी चल रही थी, उनको साथ लेते हैं। जनाब फरीद साहब खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? जी, कॉलर हमारे साथ हैं। फरीद साहब कैसे हैं? कुछ शायद कनेक्शन में खराबी है। तो उन्हीं की जो बात चल रही थी, आपने उनसे पूछा था कि आप जब मानते हैं अपने माबूद को तो उसके बारे में जानते भी हैं या नहीं। तो प्रोफेसर साहब वो साथ हैं, सुन रहे हैं, तो आप इस तरफ रहनुमाई फरमाइए, और अगर अभी वो लाइन पर आ गए तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं जहां से आपने इस बात को छोड़ा था हमने पिछले शो में। जी जी, और थोड़ी सी हम क्योंकि ये तारीखी वाक़यात है ना, कि अल्लाह ऑलरेडी वहाँ पे वजूद में थे, उनकी लोग इबादत कर रहे थे। तो हम देखें और हम शुरू करते हैं पैगंबर इस्लाम के बायोग्राफी से। इब्ने आइज़क पेज नंबर 94 में लिखा है कि अल्लाह के बारे में अरब के लोगों का ये मानना था कि अल्लाह एक खुदा है जिसकी बीबी है, उसकी 3 बेटियां हैं, और वो अल्लाह जिसकी इबादत पैगंबर इस्लाम के दादा अब्दुल मुत्तलिब करते थे, उनका नाम था हुब्बल। और यहाँ पर लिखा है कि आप हुब्बल के सामने खड़ा होकर ये दुआ करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर प्रोफेसर साहब ये सारी कुतुब में है, तो आप चंद कुतुब का हवाला दे दीजिए ताकि ये लोग जो हैं वो ये ना समझें कि कोई प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तमाम तारीख की कुतुब में ये मौजूद है, आप चंद एक का हवाला दे दीजिए प्लीज।
जी ये नहीं, मुझे वाकया कम जो से है कम उभर 10 का हवाला देने दीजिए जी, ताकि जरूर। हम चाहेंगे कि 10 का हवाला दे दे ताकि ये लोग इसके लिए अच्छे से तहकीक कर सकें। जी, बिल्कुल। तो एक तो है यूसुफ अली साहब का तफसीर और उसका नोट है 1609, 1623, 1445। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अल्लाह के बारे में अरब के लोग ये मानते थे कि उसकी एक बीबी है, उसकी 3 बेटियां हैं। दूसरा मैंने कहा इब्ने आइजक, पेज नंबर 94। तीसरा मैं आपको बता दूं कि एक इब्ने वरक्का साहब ने एक किताब लिखा है और उसका पेज नंबर 26 और 27 में तो वो कहते हैं कि वो कोट करते हैं सूरह नजम 23 का 53 का 19 से 21 में कि लोग ये मानते थे कि अल्लाह है, उसकी 3 बेटियां हैं और मतलब उसकी एक बीबी है। ये वहां के लोगों का मानना था। अब इसके अलावा एक और अथर है जिनका नाम है G.J. मुसाई। उनका किताब का नाम है हु इज दिस अल्लाह। पेज नंबर 138 में आप फरमाते हैं कि जितनी तारीखी वाकयात हैं सबसे ये साबित होता है कि अल्लाह के बारे में लोग ये मानते थे कि वो एक ऐसे माबूद है जिसकी वाइफ है, बीबी है, उनका नाम एलिलात है और 3 बेटियां हैं जिनका नाम है अल्लात, मनत एंड उज्जा। एक और स्कॉलर हैं जिनका वो तो मुस्लिम है, उनका नाम है इब्ने वरक्का और वो कहते हैं कि वाई आई एम नॉट ए मुस्लिम। पेज नंबर 42 में वो कहते हैं कि अल्लाह वहां पर अरब के जो मुशरिकीन थे उसकी इबादत करते थे और वो ये कहते थे कि अल्लाह एक है, उसकी एक बीबी है, 3 बेटियां हैं और उसकी एक वाइफ है। ऑथर जेफरी अपने किताब में कहता है पेज नंबर 85 में कि अरब के लोग ये मानते थे कि अल्लाह है, उसकी एक बीबी है और 3 बेटियां हैं। जे वेलहाउसन एक हिस्टोरियन है, वो अपने किताब पेज नंबर में कहते हैं 218, 219, 221 में कि अरब के लोग ये मानते थे कि यस अल्लाह वो एक हुब्बल देवता था और उसको लोग अल्लाह कह के माना करते थे। एक और स्कॉलर हैं जिनका नाम है जॉर्ज ब्रासवेल, जिन्होंने लिखा है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम। पेज नंबर 36 में वो कोट करते हैं वेरी के कमेंट्री को और वो कहते हैं कि हुब्बल जो एक देवता था उसको लोग अल्लाह मानते थे, उसकी एक बीबी थी और 3 बेटियां थी। मैं चाहूंगा कि फरीद साहब इन सब की मुताला करें। गुलाम अल-फरेद जो एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं जिन्होंने पैगंबर इस्लाम के बायोग्राफी को तर्जुमा किया, वो कहते हैं कि कोई भी नहीं जानता है कि अल्लाह कौन है, लेकिन हिस्टोरिकली सब जानते हैं कि वो एक अरब का माबूद है जिसकी बीबी है और 3 बेटियां हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, मुझे पता है आप बहुत से रेफरेंस दे देंगे, लेकिन मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ तमाम अपने नाजरीन को, उन्होंने तारीखी हवाला जात पेश किए हैं। इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया है, ये सैयद कासम महमूद साहब इसके मुसन्निफ हैं और ये अल-फज़ल नाशरी जो कुतुब खाना है उर्दू बाज़ार का, वहाँ से छिपा हुआ है और इसमें सफ़ा नंबर 310 पर अल्लाह की तारीफ़ बयान फरमाई गई है और जो उन्होंने फरमाया अभी प्रोफेसर साहब ने, ये आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। असल में ये सुरयानी लफ्ज़ लाहा से निकला है मगर इस बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। आप पूरा पढ़ लीजिए, मैंने आपको बता दी, किताब आपके सामने है और जो लोग भी इस पर मुतालिया करना चाहें वो ज़रूर मुतालिया करें। तारीख़ी बातें हैं और ये तालीमी और तहकीकी बातें हैं। प्रोफेसर साहब एक कॉलर हमारे साथ हैं और इनसे बात करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स इस पर रोशनी डालिएगा। जी आपको खुशामदीद कहते हैं, बात कीजिए। जी सर, फरीद बोल रहा हूँ सर। जी फरीद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस शुक्र है, आप सुनाएं। जी आपको अभी आपने पहले सवाल किया था, खुदा के बारे में पूछ रहे थे ना कि खुदा के मायने का, उस टाइम कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी फरमाइए, आपका जो बात आपसे हो रही थी उस पर बात की कि अल्लाह कौन है, तो कोई बात करना चाहेंगे इस पर आप? नहीं, आप कर रहे थे, डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे ना कि कॉलर लेते हैं, उनसे उनका ये सवाल था, वो वही डॉक्टर साहब से पूछना था, तो वो उस पर कुछ बताना चाह रहे थे। कौन से सवाल की बात कर रहे हैं आप? इसी की जी के खुदा की ज़ात के बारे में। हाँ, तो अभी ये हवाला जात जो बताए हैं आप मुतालिया कीजिए और अगर फिर कोई सवाल उसके ऊपर उठे तो आप ज़रूर मुतला कीजिए। ये जवाब दे दिया है। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स कैसे है, उसको कैसे समझें, तो इस पर बात हम करने जा रहे हैं।
कोई बात आप कहना चाहेंगे या बाद में कॉल करेंगे फिर? नहीं सर, मैं सुनना चाहूंगा कि इसका जवाब आप ठीक है, मतलब क्या ठीक कहते हैं। मैं इस टाइम देख नहीं सकता प्रोग्राम, लेकिन मैं सुनना चाहूंगा इसका जवाब ना। ठीक है जनाब, तो अभी हम जारी रखते हैं। प्रोफेसर साहब, खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स कैसे समझें? जी, और फरीद साहब ने पिछले बार जो सवाल किया था इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसका मुख्तसर सा क्लैरिफाई कर दूं और फिर हम इस सवाल के ऊपर चलते हैं। तो जो फरीद साहब का पिछले बार का सवाल था वो ये कि इस्लामिक जो तालीम है वो ये कि इंसान एक वाहिद सच्चे खुदा की इबादत करे, और अगर वो बुत परस्त भी है तो खुदा उसको माफ़ कर देगा। और तब हम लोग जो जिक्र कर रहे थे वो थे सूरह निसा 4 का 48 आयत में, जिसके लोग कोट करते हैं कि खुदा हर गुनाहों को माफ़ करेगा, लेकिन अगर आप किसी को शरीक कर देंगे तो वो गुनाह खुदा कभी माफ़ नहीं करेगा। और इसको कई बार हजरात जो मुस्लिम आलिम हैं या पोलेमिक्स हैं, जाकिर नायक साहब जैसा, इसको क्रिश्चियनों से ये लोग जोड़ देते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी होगा कि आइए हम देखें ये सूरह निसा 4 का 48 का मतलब क्या है। तो मैंने कहा था कि ये जो आयत नाजिल हुआ है आप पढ़िए, तो इसके लिए इब्न अब्बास कहते हैं कि ये इंसान के लिए जाहिर नाजिल हुआ, उसका नाम था वहसी। वहसी एक यहूदी गुलाम था और उसने जंग खैबर से पहले हमजा बिन मुतल्लिब का कत्ल कर दिया था, और इसीलिए वो डर से भाग गया था। लेकिन बाद में उसे पता चला कि मुसलमान उसे कत्ल कर देंगे, और तब उसने इस्लाम कबूल कर लिया एंड पैगंबर इस्लाम से माफ़ी मांग ली। और उसके हक में कुरान निसा आयत नंबर 48 जाहिर हुआ कि खुदा हर गुनाहों को माफ़ करेगा, लेकिन अगर कोई इंसान शिर्क करे तो इसे माफ़ नहीं करेगा। अब देखिए साहब, सवाल यह है कि क्या वैसी मुशरिक था? नहीं। वो कौन था? यहूदियों के पास था। यहूदियों के बारे में आपने जो आयत पढ़ा था आज सुबेरे प्रोग्राम से पहले कि इनसे आर्गुमेंट मत करो, बल्कि इनसे कहो कि तुम्हारा खुदा हमारा खुदा एक ही खुदा है। तो अब वो तो मुशरिक नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं क्रिश्चियनों को मुशरिक बनाने के लिए साबित नहीं होता। दूसरा एक आयत है सूरह निसा 4 का 116 में, वहां पर भी लिखा है कि खुदा हर गुनाहों को माफ करेगा, लेकिन अगर कोई शिर्क करे तो ये गुनाह खुदा माफ नहीं करेगा। इसको भी ये लोग जोड़ देते हैं, एंड अल राजी ने बल्कि इसको जोड़ दिया था। लेकिन अगर आप इसकी मुताला करेंगे कि ये बातें जो है क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है, ये किसके हक में कहा गया, तो कुरान उसका 39 का 53 में जो पहली आयत उतरी थी वो ये कि खुदा हर किस्म के गुनाहों को माफ करेगा। लेकिन उसके बाद एक और मुसलमान थे जिसका नाम था तोमा, और लिखा है कि तोमा ने यहूदी के घर से एक हथियार और कुछ चीजों को चोरी कर लिया, और इसके बाद से जिसके घर से चोरी किया उन्होंने उससे जाके पूछा कि क्या तूने चोरी किया है, तो उसने इनकार किया। लेकिन लोग उसके पैरों का निशान देखते हुए उस मुकाम पर पहुंच गए जहां उसने छुपाया था, और जब उन्होंने पकड़ा तो उस घर वाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर तोमा ने आके छुपाया। फिर तोमा अंसार के घराने से था, और ये लोग पैगंबर इस्लाम के पास गए और कहे कि आप हमारे लिए जाके हमारे फेवर में यहूदियों से बहस करें। लेकिन पैगंबर इस्लाम को पता चल गया कि तोमा एक मुसलमान है, उसने चोरी किया है, और पैगंबर इस्लाम ने कहा कि तुम तोमा इस हथियार को वापस करो, और तब वापस आके में मुशरिक हो गया, और उसके हक में ये कहा गया। तो अब यहां पर भी देखिए, मैं कह रहा हूं कि मसीहों से इस आयत का कुछ लेना देना नहीं है। ये एक तोमा है जो मुसलमान है, पहले मुशरिक था, अब मुसलमान हो गया, फिर मुशरिक बन गया, उसके लिए ये आयत नाजिल हुआ। और अब मैं बड़े रहीमी, बड़े हलीमी, बड़े मिन्नत के साथ मैं फरीद साहब के सामने कुछ आयत पेश करने वाला हूं, और मैं चाहूंगा कि आप इसकी मुताला करें। फरीद साहब, एक सही अल बुखारी उसका वॉल्यूम 7 हदीस नंबर 407 पढ़िए। हिस्ट्री अल अरब लिखा है वकीदी के जरिए, पेज नंबर 99 पढ़िए, और इब्ने आइसक पेज नंबर 26 और 27 पढ़िए, और तारीख अल तबरी वॉल्यूम 1 उर्दू पेज नंबर 101 से लेके 105 तक पढ़िए कि यहां पर जिस हस्ती का जिक्र किया गया है, आप खुद बुत परस्त थे, आप बुत परस्ती से वापस आए
और फिर एक बार बुत प्रस्त हो गए, ये उनके हक में लिखा गया है। अब इसको मसीहों से जोड़ देना साहब इंसाफ के नजरिया से ये सही नहीं होगा। अब इसको अपने दिमाग में रखते हुए हम एक आयत के ऊपर आते हैं जो कुरान में है, कुरान 38 का 5 से 11 में। वहां पर लिखा है कि क्या इन्होंने यानी पैगंबर इस्लाम ने तमाम माबूदों के मुकाम पर एक माबूद रख दिया, एक बना दिया। और इसके बारे में इब्ने अब्बास और वकीदी साहब पस मंजर को पेश करते हैं कि ये किसके लिए है। क्या ये यहूदियों के लिए आयत नाजिल हुआ है, क्या ये मसीहों के लिए है, क्या ये अरब के लोगों के लिए है। तो वो कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम के चाचा जब वो बीमार हुए तो मक्का के लोग उनके पास शिकायत लेकर के आए कि आपके भतीजा हमारे साथ ऐसी बातें कह रहे हैं। और तब उन्होंने पैगंबर इस्लाम से पूछा कि ए भतीजे तू क्या चाहता है इनसे। तो उन्होंने कहा एक बात कि अगर ये लोग एक बात को मान लें जिसकी मैं दरख्वास्त करता हूं तो सारे अरब इनके गुलाम बन जाएंगे। और उन्होंने पूछा क्या बात, तो उन्होंने कहा कि ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कह दो कि कोई माबूद नहीं सिवाय एक अल्लाह का। और मैंने फरीद साहब से कहा था कि अब ये आयत जो नाजिल हुई है यहूदियों के लिए नहीं है, क्रिश्चियनों के लिए नहीं है, ये मक्का के मुशरिकीनों के लिए है। वो 360 माबूद को मानते थे जिसमें से एक अल्लाह थे और उस अल्लाह के 3 बेटियां थी, अल्लात, अलमनत, अल-उज्जा, और एक उनकी बीबी थी जिनका नाम था अल्लात। अब साहब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि तारीख से जो हमने हवाला दिया ऐसे हमारे पास 68 सबूत हैं कि ये अल्लाह जो हैं एक अरब से आते हैं, इसका ओरिजिन सुमेरिया से हुआ, इसका यहोवा से कुछ लेना देना नहीं है। एंड अगर आप सीरियसली पढ़ेंगे प्रॉपर थियोलॉजी कि बाइबल का खुदा यहोवा कौन है, तो साहब मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आप जी प्रोफेसर साहब क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी सुन सकता हूं। हाँ जी, तो प्रोफेसर साहब आप यहां पर यह भी सुन रहा बताइए कि कभी यहां पर अल्लाह की परस्तश होती थी, कभी यहूदियों ने जाकर वहां परस्तश की हो या मसीहों ने जाकर परस्तश की हो तारीख में, कभी भी? ये थोड़ा बताइए। हरगिज नहीं। और एक मसीही वहां पे जो ग्रुप था जिसको ग्रुप जिसके बारे में इब्ने बरक्का का जिक्र आता है, इसको 399 में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इसे कंडेम किया कि ये हेरेटिक्स लोग हैं। तो नेस्टोरियन क्रिश्चियंस को क्लासिकल क्रिश्चियनिटी का दर्जा नहीं मिला है, इन्हें एक हेरेटिक क्रिश्चियन कहा गया है। और ये लोग वहां थे, लेकिन ये लोग भी वो बुत प्रस्त नहीं थे। एक्चुअली इनका कहना ये था कि यीशु मसीह सिर्फ खुदा है, वो इंसान नहीं है। और तो क्लासिकल क्रिश्चियनिटी कहती है तो कि शुक्रिया नहीं। प्रोफेसर साहब, आप ये कह रहे हैं जैसे आजकल जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं उनका एक फिरका है अहमदिया फिरका, तो बाकी फिरके उसको नहीं मानते, तो नेस्टोरियन कुछ ऐसा ही फिरका था मसीहत में जो उस वक्त वहां मौजूद था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जनाब। क्योंकि देखिए आप अगर किसी मजहब पे कमेंट करना चाहते हैं ना तो उनकी किताबों को पढ़ें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, राय को पढ़ें। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया। बात यह है नाजरीन जी कि तारीख, बैरूनी शहादतें, तारीख को जानना, लिटरेचर को जानना, वहाँ के लोगों की साइकी और उनके रस्म व रिवाज को जानना और फिर कुतुब की अंदरूनी शहादतों को जानना, ये बहुत अहम बात है। प्रोफेसर साहब 15 मिनट हमारे पास हैं। मैं ये आपसे दरख्वास्त करूंगा आप कि आप खुदा बाप और बेटा और रूहुल कुद्स, कहा जाता है कि ये जो तालीम है ये शिरक की तालीम है, किसी को बराबर लाना है, तो कैसे फिर समझें आप? जी, और मैं आपको बता दूं साहब कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है। आप पढ़िए मत्ती की इंजील उसका 22 का 41 से लेकर 46 आयत में। तो हजरत मसीह कहते हैं कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या राय है, और वो कहते हैं कि दाऊद का बेटा। और तब वो जबूर शरीफ कोट करते हैं उसका 110 का 1 आयत, और वो कहते हैं कि
दाऊद तो खुदा के इल्हाम से फरमाते हैं कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा मेरे दाहिने हाथ बैठ, और वो पाक रूह से इल्हाम पाए थे। तो अगर वो मुझे खुदावन कहते हैं, अगर मैं उनका यहोवा एडोनाई हूं, तो मैं उनका बेटा कैसे हूं? तो आप 4 बातों का ध्यान में रखिए। नंबर 1, खुदावन यीशु मसीह ने ये बात संडे स्कूल के बच्चों से नहीं पूछा। नंबर 2, अगर खुदावन यीशु मसीह का तसरीह गलत था तो 1 सेकंड में वो फरीसी करेक्ट करेंगे। नंबर 3, अगर यीशु मसीह का बयान सही है तो वो क्या कह रहे हैं? खुदाबंद ने मेरे खुदाबंद से कहा 2 खुदाबंद हैं, एंड पाक रूह ने हजरत दाऊद को इल्हाम दिया, वो तीसरा शख्स है। तो हजरत मसीह इस तसलीस के ऊपर यहां पर बहस करते हैं। नंबर 2, यही मत्ती के इंजील जब आप पढ़ेंगे तो जब हजरत मसीह की बपतिस्मा हुआ तो उस वक्त हजरत मसीह इंसान के शकल में थे। खुदा बाप आसमान से बोला कि ये मेरा प्यारा बेटा है, एंड पाक रूह कबूतर के शकल में आया। और इसको इग्नेशियस को कहता है, कहता है कि जब हम कहते हैं तसलीस, तो आपको ये समझना चाहिए कि तसलीस का मुराद ये है कि जब खुदावन मसीह की बपतिस्मा हुआ तो वहां पर हम 3 शख्सियत को देख सकते हैं। नंबर 4, हजरत मसीह जब कहते हैं मत्ती उसका 28 का 19 में कि जाओ बाप बेटा रूहुल कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। 8 स्कॉलर को कोट करूं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया। वक्त देंगे जी, 1 सेकंड मुझे दीजिए। हमारे साथ एक कॉलर हैं, इनसे बात कर लें और फिर बात को जारी रखेंगे। जी आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। खुश आमदीद कहते हैं बराह रास्त शो फजल रबी में। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आपकी भी सलामती हो। जी 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 हाँ सर, मैं मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से, सिंध सूबे से। जी मुस्तफ़ा भाई बात कीजिए। जी हाँ सर, डॉक्टर साहब से मुझे ये पूछना है कि मैं ऑलरेडी जो है ना अनमेरिड हूँ। मेरे साथ दोस्त है मेरी, वो जो बैठी हुई है दूर बैठी हुई है, वो मतलब कि कहते हैं कि हम ऐसे निकाह फोन पे जो होता है ना, निकाह मैं फोन पे आपके साथ करती हूँ। तो मेरा डॉक्टर साहब से ये मशवरा लेना था कि डॉक्टर साहब से पूछ लूँ ऐसे निकाह जायज है या नहीं है? टेलीफोन पे निकाह जायज है या नहीं है? अच्छा हाँ सर, ये मेरा सवाल है। असगर साहब जी, वो पूछ रहे हैं जनाब टेलीफोन पर जायज़ा निकाह या नहीं, तो ये मौजू तो नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें बात तो। नहीं, लेकिन जी पहली बात ये निकाह के लिए लड़की की माँ बाप का राजी होना जरूरी है, लड़के का माँ बाप का राजी होना जरूरी है। इसलिए दोनों तरफ से लोग जाते हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, और निकाह कोई मामूली चीज नहीं, ना टेलीफोन पे निकाह कर सकते हैं और ना ही इसको तोड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया। राजी होना का जरूरी है। जी हमारे पास इस वक्त प्रोफेसर साहब तकरीबन 14 मिनट हैं। मैं आपसे अब फिर दरख्वास्त कर रहा हूं, आपने हवाला जात दिए बाइबल के जहां पर तस्लीस का जिक्र है, ये बात छिपी नहीं है, सब लोग जानते हैं, पढ़ सकते हैं। अब दरख्वास्त ये है कि बाप को कैसे समझें, वो बेटे को कैसे समझें, रूह को कैसे समझें, बाप से शुरू कीजिए ताकि हम फिर इसको जारी रख सकें। और कोशिश कीजिए अगर आप एक बात जो है वो आज समझा दें, आपके पास तकरीबन 14 मिनट हैं। जी बिल्कुल आपने सही बात कहा है कि हमें बाप से शुरू करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हजरत मूसा जो पहला किताब तौरेत लेकर के आते हैं तो वो खुदाबंद को कहीं ना कहीं बाप कह के तस्वर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर खुदा अब्दियत का बाप है तो उसका बेटे का होना लाजिम है। और मैं आपको बता दूं कि हजरत मूसा खुदा को जब बाप कह के पुकारते हैं तो वो क्या समझते हैं, आइए हम देखें। जब पढ़ते हैं इस्तिस्ना का किताब उसका 32 का 6 में, तो हजरत मूसा कहते हैं कि अपने उस खुदा बाप के बारे में तो सोचो। इस्तिस्ना 32 का 17 में कि अपने उस खुदा बाप के बारे में तो सोचो। हजरत दाऊद कहते हैं कि साम 68 का 4 और 5 में कि खुदा हमारा बाप है। यर्मिया रसूल फरमाते हैं 3 का 19 और 31 का 7 और 9 में कि खुदा हमारा बाप है। यासाया रसूल फरमाते हैं, यासाया उसका 63 का 6-16 कि खुदा हमारा बाप है। तो जब इतने सारे अंबिया कराम लोग कहते हैं कि खुदा हमारा बाप है, तो आप क्या समझते हैं साहब, क्या वो जिस्मानी बाप कह रहे हैं
नहीं। अब इसी बात को हजरत मसीह कहते हैं मती का इंजील उसका 6 का 9 में कि जब तुम दुआ करो तो कहना कि ए हमारे बाप तू जो आसमान में है तेरा नाम पाक माना जाए। तो अंबिया कराम, मैं किसी स्कॉलर की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो इल्हामी नहीं होते हैं, अंबिया कराम अगर खुदा को अपना बाप कह रहे हैं, हजरत मूसा, हजरत दाऊद, हजरत यर्मिया, हजरत यासाया, हजरत मसीह, तो आप मुझे बताइए क्या इनको इस्लाम से कोई दुश्मनी था जनाब? बहुत शुक्रिया प्रोफेसर क्या साहब, इन्होंने बहुत इस्लाम शुक्रिया, को देखा था? बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, एक कॉलर है, इनसे बात कर लें, फिर बात को जारी रखेंगे। जी, आपको लाइव शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी, आपकी भी सलामती हो, बात कीजिए। हेलो जी, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। बस आप तो जबरदस्त खादम है, आपकी बातों से जो मैसेज देते हैं बहुत बरकत मिलती है। सवाल ये है कि गुड फ्राइडे में जब लोग ब्लैक कपड़े पहनते हैं, सोग मनाते हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए? और जब रोजे आते हैं तो लोग कहते हैं कि गोश्त नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, आपके सवालात मैंने लिख लिए हैं, आने वाले शोज में हम सवालात के जवाब दे रहे हैं। बहुत अहम मौजू चल रहा है, आपसे माजरत के साथ अगले हफ्ते। शुक्रिया, बड़ी खुशी है आपसे बात करके डॉक्टर साहब। जी, बहुत शुक्रिया। सब खुदावंद यस्सु का फजल है, खाक और राख को इस्तेमाल करना उसका करम है, बस उसी के फजल से बात बनी हुई है। आपके मोहब्बत भरे अल्फाज के लिए शुक्रिया। खुदावंद आपको, पाकिस्तान को, सब बसने वालों को वहाँ बरकत दे, पूरी दुनिया में अमन और सलामती हो, यही हमारी दुआएं हैं। आपके सवाल का जवाब देंगे आने वाले हफ्तों में। आज बड़ा अहम मौजू है तसलीस का। सो बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, कॉल करते रहिए। बहुत शुक्रिया, खुदावंद बहुत बरकत दे। जी प्रोफेसर साहब, बाप के बारे में बात कर दी तो नाजरीन, जब 4-5 बड़े अंबिया पुराने अहदनामा में से खुदा को बाप कहकर पुकार रहे हैं, तो क्या खुदा उनके वसीला से जो इल्हाम उन पर खोलता है, क्या वो हल्की सी बात है? कुरान की सूरह 6 उसकी 114 और 115 आयात में लिखा है, खुदा की बातें बदलती नहीं हैं और ना कोई उन्हें बदल सकता है। जब वो अपने भेदों को खोलता है तो कौन है जो उसके कलाम के खिलाफ खड़ा हो सके? समझने की जरूरत है, शागिर्दियत की रूह में आने की जरूरत है। उसका कलाम ला तब्दील है। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया। बाप के बारे में और आप क्या बात बताना चाहते हैं जो हमारे मुसलमान बहन भाई एतराज करते हैं, समझ नहीं पाते, उसको आप खोलिए थोड़ा सा। क्या एतराज है उनका बाप पर? देखिए, यही जी, अब मैं आपको बता दूं साहब कि कुछ साहिबान लोग हैं, जैसे आपने सुना होगा जाकिर नायक जो आजकल के बड़े फेमस हैं, और वो कहते हैं कि देखो ये सब जिस्मानी बातें हैं, हमें इन सब के बारे में नहीं करना चाहिए। लेकिन बाइबल में आप पढ़ेंगे कि खुदाबंद ना केवल बाप के बारे में बोलता है, उसका मायने बताता है कि वो अब्दियत का बाप है। ये अब्दियत का बाप क्या है, थोड़ा सा ये बताइए प्रोफेसर साहब, एक सेकंड दीजिए। आपने फरमाया वो अब्दियत का बाप है, लोग नहीं समझ पा रहे, क्यों नहीं समझ पा रहे? आप इस्लाम के स्कॉलर हैं, तो ये बताइए क्यों, कैसे वो समझे, क्यों नहीं समझ पा रहे? लिखा है अब्दियत का बाप है। ये थोड़ी बात खोलिए ना इसको जरा जनाब। जी, अब देखिए, आप भी बाप हैं, मैं भी बाप हूं, लेकिन हम टेम्पररी बाप हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बेटे टेम्पररी हैं। लेकिन खुदा जो अब्दियत का बाप है, क्यों? क्योंकि उसका एक इटर्नल बेटा है। और इसी बात को यशायाह 9:6 में कहा गया है कि हमें एक बेटा बख्शा गया, ओके, और वो सलामती का शहजादा है। और हजरत मसीह कहते हैं यूहन्ना के इंजील उसका 17:5 में कि ए बाप, मुझे तू वो जलाल दे जो दुनिया के पैदाइश से पहले मेरे तेरे साथ थी। तो अब वो क्या कह रहे हैं साहब? ए बाप, वो बाप कह के पुकार रहे हैं, तू मुझे वो जलाल दे जो दुनिया के पैदाइश से पहले मेरे तेरे साथ थी। और इसीलिए वो कहते हैं यूहन्ना 8:56 से 58 में कि इससे पहले इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। और वहां पे जो ग्रीक लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं कि ईगो इमी जेनेसे थाई, इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ, शुरुआत हुई उसकी, मैं इटर्निटी से हूं। अब क्योंकि यशायाह में लिखा है कि खुदा हमारा अब्दियत का बाप है, रीजन यह है क्योंकि उसका एक इटर्नल बेटा है।
इटर्नल आप जानते हैं अंग्रेजी का लफ्ज है, उर्दू में अब्दियत का बाप है। और उस मसीह के बारे में जब हम बाप के बारे में बोलते हैं, ये बात समझाने के लिए खुदा ने पुराने अहदनामे में बहुत अच्छे से तालीम दिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, एक सेकंड दीजिए। प्रोफेसर साहब एक सेकंड दीजिए मुझे। ये सारी बातें अपनी जगह पर अहम हैं। हमारे मुसलमान बहन भाई कैसे समझे ये बताइए। ये तो लिखी हुई हैं, बता रहे हैं, वो क्यों नहीं समझ पाते इस बात को? क्या रुकावट क्या है और आप उसको कैसे दूर करेंगे? ये बताइए, रुकावट क्या है उनके समझने में? क्या कौन सी आयात हैं, कौन सी रवायात हैं जो जिनकी रोशनी में वो इन बातों को समझते हैं, और आप उनको इस समझाने की हद तक कैसे लाएंगे, इस पर बात कीजिए थोड़ी सी। देखिए, आपने कोट किया था कुरान शुरू में अपने पैगाम में, कुरान 3:7 में, कि इस कुरान के अंदर कुछ आयात हैं जिसकी मीनिंग खुले हुए हैं एंड कुछ आयात है जिसका मीनिंग सिर्फ खुदा जानता है। लेकिन आइए हम कुरान में देखें कि इसका मतलब क्या है। अब इसी कुरान सूरह माइदा 5:83 में लिखा है, 83 में, कि जो लोग यानी क्रिश्चियन, वहां पे लिखा है कि ये क्रिश्चियन तुम्हारे सबसे बड़े दोस्त हैं। क्यों? नंबर 1, ये हक को पहचानते हैं। नंबर 2, ये दुआ करने वाले हैं। नंबर 3, ये खुदा परस्त हैं। नंबर 4, इनकी आंखें आंसुओं से भर के नमी है। दोबारा बोलिएगा प्रोफेसर साहब इस आयत को, हाँ, सूरत और आयत बताइए दोबारा प्लीज, बड़ी मेहरबानी। सूरह अल माइदा चैप्टर 5 आयत नंबर 82 एंड 83 यहां पर लिखा है, मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन बुत परस्त और यहूदी हैं, एंड मुसलमानों के सबसे बड़े दोस्त वो हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। यहां पर मैं एक बात प्रोफेसर साहब एक सेकंड दीजिएगा, मैं ऐड कर दूं। यहां पर हमारे मुसलमान बहन भाई कहते हैं कि मसीही दोस्त नहीं हो सकते, तो वर्का बिन नौफल जिसने पहले मदद की वो कौन था? हबशा में जब हिजरत की गई तो वहां पर मदद करने वाले कौन लोग थे? इस बात को तारीख ने साबित किया है। करबला में जब बहुत से लोगों को जरूरत पेश आई तो वहां पर भी चादरें लाने वाले और दीगर इंतजाम करने वाले तारीख बताती है मसीही ही थे। प्रोफेसर साहब हमारा वक्त तकरीबन खत्म हो गया, 1 मिनट आपके पास है। जी, तो मैं आपको बता दूं साहब, आप बिल्कुल कह रहे हैं कि अब वहां पे लिखा है कि ये जो मसीही लोग हैं क्यों दोस्त हैं। नंबर 1, हक को पहचानते हैं। नंबर 2, इल्म रखते हैं। नंबर 3, खुदा परस्त हैं। नंबर 4, दुनियादारी को इन्होंने छोड़ दिया है। नंबर 5, ये लोग हलीम लोग हैं। और इसीलिए कुरान 10:94 में लिखा है कि अगर आपको किसी बात का शक है तो जाइए अहले किताब से आप पूछिए। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया है। नाजरीन, बहुत अहम सवालात, बहुत अहम बातें। प्रोफेसर साहब हमारे साथ वक्तन फवक्तन रहेंगे आने वाले हफ्तों में भी। हम शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद का, तमाम कॉलर्स का, मैं अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया। खुदा के कलाम की बातों का इस वक्त हम तक पहुंचना आसमान से उसकी मोहब्बत और तरबियत का सबूत है कि वो इस्लाम है। हम इंसानों से मुखातिब हैं ताकि सारी बातें समझकर हम उसकी बरकत से अपनी जिंदगियों को भर लें। फैसला हमारा है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं आपका मेजबान डॉक्टर दानियाल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।